Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371-7106, and 2371-7117. And listeners who will be calling us from outside Delhi can have to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लेकर आए हैं। आज सोमवार है और इस कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कार्यक्रम में हम किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 2371-7106। हमारा तीसरा नंबर है 2371-7117। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। Thank you, Nikhil. Domestic stocks fall around 1.5% amid negative global cues. Sensex closes below 58,800 points. Nifty settles below the 17,500 mark. Sovereign gold bonds open for subscription from today at the rate of 5,197 rupees per gram, and Brent crude prices decline to hover around $96 per barrel level. वैश्विक बाजारों में ये नकारात्मक रुख के चलते घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 1.5% की गिरावट। सेंसेक्स 58,800 से नीचे और निफ्टी 17,500 के स्तर के नीचे हुए बंद। वर्ष 2022-23 की दूसरी श्रृंखला के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हुई। स्वर्ण बॉन्ड का निगम मूल्य 5,197 रुपए प्रति ग्राम और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $96 प्रति बैरल के आसपास। And before we begin the program, let me invite and welcome to the studio our expert today, who is Harveer Singh, editor Rural Voice. Mr. Singh, welcome to the program. Thank you. और शुरुआत करते हैं सेंसेक्स के साथ में। तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों में ये गिरावट आई, जिसके कारण नकारात्मक रुख रहा और घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 58,800 और निफ्टी 17,500 अंक के स्तर के नीचे आकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 872 अंक की गिरावट से 58,774 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 268 अंक लुढ़ककर 17,957 पर आ गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक आज 1.82% नीचे आ गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.17% की गिरावट देखी गई। The Sensex and the Nifty today plunged around 1.5%. Both key domestic stock indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex finished below the 58,800 points mark, while the Nifty ended below the 17,500 mark. The Sensex tumbled 872 points to finish at 58,774. The Nifty declined 268 points or 1.51%. In the broader market at the BSE, the mid-cap index plunged 1.82% and the small-cap index declined 1.17%. In the Sensex pack, 2 companies posted gains while 28 logged losses. ITC climbed 0.6% and Nestle India added 0.1%. On the other hand, Tata Steel lost 4.5% and Asian Paints fell 3.8% and Wipro ended 3% down. In sectoral indices at BSE, all sectors logged losses. The metal sector tumbled 2.7%, realty declined 2.5% and basic materials slipped 2.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,172 companies gained while 2,387 fell. Shares of 147 companies remained unchanged. Mr. Singh, we saw that after 5 weeks of a bull run, the markets on Friday fell by 1%. Today it's almost 1.5%. So overall about 2.5% fall in the last 2 sessions. Are we seeing a much required correction here? Actually, if you see the market, since this result season, I think market has grown out of proportion compared to the result we have seen from the companies.
That is one of the reasons that many experts are talking about the correction, and we have seen in these last two sessions that kind of correction. On the other hand, this global situation is also like that. Dollar is strengthening, and there is again one more expectation from the Fed to increase the interest rate. In that case, the supply of money towards emerging economies or emerging markets like us may be slowed down. And at the same time, in fact, in July, we have seen a very good inflow from FPIs and all. But now I think they must be looking some other options also. At the same time, mutual fund, particularly in debt, there is a huge redemption in mutual fund also. So the market was getting this kind of investable surplus flow into the market for mutual fund. That has also gone down. जी, और इस बीच में दिल्ली से हमारे साथ में सुमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. हेलो जी, सुमित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. आपका प्रश्न. नमस्ते सर. नमस्ते सर. एक्चुअली क्या, मैंने आज 2-3 कंपनियों को शेयर खरीदे थे जी. तो इनका जैसे ITC और अडानी पावर और पेटीएम से जी. तो एक्चुअली आज तो बहुत डाउन चले गए जी. आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये, क्या फ्यूचर रहेगा? जैसे मैं अगर कुछ शेयर खरीदा तो आगे सेल करूं या इसको अभी रखूं? देखिए, किसी कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर इस तरह का आपको सलाह नहीं देते हैं. सेक्टर के बारे में आप बात कर सकते हैं, ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमी के रिलेटेड जो इश्यूज है उनके बारे में बात कर सकते हैं. बट इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में ये पॉलिसी है कि हम लोग उसके बारे में सलाह नहीं देते. And the next caller is from Kolkata, one of our regular callers, Mr. Atanu Saha. Mr. Saha, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, sir. I do listen on right now regularly market money matter also. And my question is, sir, the farmer pension system in India, sir. Only one question: farmer pension system in India, sir. Thank you. Mr. Saha, what is exactly do you want to know about the farmer pension system? What is it about? Is that what you want to know? No, is he asking about former, this old pension system or farm? He's basically asking about what the farmer pension system is. Yeah, basically, we have a contributory pension system for the farmers, which government launched. Farmer can, in fact, it is for any individual to invest into that, but you have to contribute every month, and then at a certain interval after your contribution, you will get a flow of pension every month. Right. And now the next caller is from Khajuraho, Mr. Jitendra. Welcome to the program, Mr. Jitendra. Please ask your question. Mr. Jitendra, can you hear me? Looks like we have lost. Oh. Please ask your question. आपका कार्यक्रम में स्वागत है. अपना सवाल पूछें. जी मैम नमस्ते. हरवीर सर को भी नमस्ते. जी नमस्ते. सवाल पूछिए अपना. जी सवाल पूछिए अपना. जी, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं तो इसमें जो अदर कंट्री पार्टिसिपेट करती है, कोई भी हो, रशिया हो, जापान हो, तो वो जो पार्टिसिपेट करती है तो टेक्नोलॉजी को लेके करती है या फिर पैसे की प्रॉब्लम की वजह से करती है? इसका आंसर चाहिए. थैंक्स. देखिए, हाइड्रो पावर में एक तो हम लोग जो भी रिवर्स होती है उनके ऊपर डैम बना करके वहां पर पावर जनरेशन करते हैं. सो बेसिकली अगर वहां पर उनका पार्टिसिपेशन है तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह से ज्यादा होता है, क्योंकि और ये भी हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी में तो टरबाइन इस्तेमाल होती है. टरबाइन पानी के प्रेशर से चलती हैं जो टनल में. सो वो उसमें कोई बहुत ऐसा कोई नया तो नहीं है, बट मे बी गुड एफिशिएंट टरबाइन नए तरीके की बनाई हो जो जिनका आउटपुट अच्छा हो. जरूरत होगी तो शायद वहां पर, क्योंकि बट यूजुअली टरबाइन तो हमारे यहाँ ही बनती हैं, हमारी कंपनियां बनाती हैं, और हाँ चाइनीज कंपनीज भी बनाती हैं. तो उस तरीके का कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में इसमें जरूरत हमें बाहर से नहीं है. वी हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ इन हाइड्रो पावर इन आवर कंट्री, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर. जी, और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ में गौतम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं. हेलो जी गौतम जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ धन्यवाद. सभी को मेरा नमस्कार. हरवीर सर,
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी अभी मैंने पेरेंट्स की, नॉर्मली इसका रिफंड जो है वो 15 दिन के अंदर आ जाता है आफ्टर कंफर्मेशन। इस बार कंफर्मेशन आई है मेल पे, लेकिन 15 दिन से तो ऊपर कहीं ज्यादा हो गए, 1 महीना होने को आ रहा है और रिफंड नहीं आया। इसको कैसे ट्रैक किया जाए सर, इसको कैसे चेक किया जाए, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। देखिए, एक तो जो सेंट्रल इसका जो है सिस्टम जो उसका यहाँ पे बेंगलोर में है, आजकल वहीं पे हम लोग सब अपना रिटर्न फाइल करते हैं और ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होता है और सिस्टम इस तरीके का है जैसे आपका रिटर्न जाता है तो डाटा आपका फैच हो जाता है और वो डाटा स्टोर, इसमें काफी सारा ऐसा कि जो उसमें जो कैलकुलेटर्स भी हैं वो सिस्टम में इनबिल्ट है, वो लगे रहते हैं और वो आपका जो इनकम है उसके हिसाब से आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है और रिफंड आपका उसको वेरीफाई करता है और फिर वो एक प्रोसेस में भेज देता है। मैंने तो खुद विजिट किया है उसको, कहीं पहले तो क्योंकि चेक्स के माध्यम से आता था, चेक्स भी प्रिंट हो जाते थे और इवन वापस भेजने का सिस्टम भी ऑटोमेशन था। काफी एफिशिएंट हो गया, मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए, नहीं तो फिर आप मेल कर सकते हैं ग्रीवांस सेल में, वहां पर कॉल सेंटर्स भी हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट देयर। इसमें एक चीज ये भी कर सकते हैं कि टीडीएस रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यदि उसमें ये दिखा रहा है कि बैंक को भेज दिया गया है तो वो बैंक में आपके आ जाएगा। अगर ये उसमें दिखा रहा है कि बैंक तक नहीं पहुंचा है तो आपको अभी कुछ दिनों का वेट और करना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता न करें, आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा जितना आपका लेट होगा। देखिए, ये तो आपका जो मोबाइल और आपकी ईमेल दोनों सीधे वहां पे कनेक्टेड है, एनी कम्युनिकेशन इमीडिएटली कम्स टू डायरेक्ट। और मैं आपको उसका एक नंबर भी बता सकता हूं, टोल फ्री नंबर है ये 1800-103-0025। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एक और नंबर हम आपको बता सकते हैं, वो ये है कि 1800-419-0025। ये 2 नंबर हमने आपको बताया, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको अपना स्टेटस जरूर पता चलेगा। इस बीच हम गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करें तो वर्ष 2022-23 श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हुई और ये शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड के निर्गम मूल्य 5,197 रुपए प्रति ग्राम पर रखे गए हैं। Mr. Harveer Singh, we were talking about one of our callers, the very first caller asked about the Kisan Pension Yojana. So what are the salient points for our listeners if we want to elaborate on that? What are the salient points of this particular scheme? And how can the farmers associate themselves with this scheme? नहीं, देखिए, ये है कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो माना जाता है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको मिलता है। पहले पुराना पेंशन सिस्टम था, फिर 2004 के बाद न्यू पेंशन सिस्टम आया। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और साथ में उसी तरह हमारे फार्मर्स भी हैं, उनको एक सर्टेन एज के बाद जब उनको जरूरत होती है कि वो इनकम का फ्लो उनके पास बना रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू की है। उसमें किसान अपना जो है अंश दे सकते हैं और सरकार भी मदद करती है और फिर जो अटेंड करेगा जब रिटायरमेंट एज, तो उसके बाद उनको पेंशन मिल सकती है। जो उस वक्त जो फंड है उसका जो रिटर्न होंगे उसके हिसाब से पेंशन तय होती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी उसी तरीके का, इवन अब जो गवर्नमेंट सेक्टर में 2004 के बाद अगर आर्म फोर्सेज को छोड़ दें तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम बट विद द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हरवीर जी, अगर हम बात करें तो भी गोल्ड बॉन्ड का हमने जिक्र किया था जिसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा और जो लोग ऑनलाइन भुगतान करें उन्हें 50 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है पर परचेज पर। किस तरह से लोगों को ये प्रभावित करेगा, किस तरह से लोगों को ये फायदा पहुंचा सकता है अगर जो लोग लंबे समय तक सेफ हैंड करके अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, एक तो गोल्ड को मुश्किल के समय का जो है एक उस तरीके का रिजर्व की तरह माना जाता है। इवन सॉवरेन कंट्रीज भी वहां पे बॉन्ड्स मतलब गोल्ड का एक वैल्यू वो लोग भी रखते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी रखते हैं। तो ये माना जाता है कि अगर आपके पास गोल्ड का रिजर्व है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जैसे जरूरत पड़ेगी कभी। लेकिन अब सवाल है कि गोल्ड में आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, पहले यही करते थे, लेकिन अब आपका डिजिटल तरीके से आप ये गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। जो गोल्ड का वैल्यू है उसमें जो आज जो स्कीम के साथ जो प्राइस अनाउंस किया गया है पर ग्राम का, उसके हिसाब से आप उसमें पैसा लगाएंगे, उतना आपके पास यूनिट्स होगा। फिर उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी है। साथ में जब ये गोल्ड का प्राइस, क्योंकि प्राइस लिंक्ड है वो मार्केट से, जब एप्रिशिएट होगा, आपको भी गोल्ड इसलिए खरीदते हैं फिजिकल भी कि मैंने आज खरीदा तो 10 साल बाद ये दाम बढ़ेगा, मेरे पास ज्यादा उसका एक तरीके से रिजर्व होगा पैसे का और मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, एप्रिशिएशन होगा। तो ये एक तो आपको एप्रिशिएशन देता है, आपको
इंटरेस्ट देता है, सेफ है। जी। आपको फिजिकल गोल्ड के लिए आप लॉकर में रखिए, उसकी सुरक्षा कीजिए, तो बहुत सारे उसके जो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है किसी वैल्यूएबल जो हाई वैल्यू इस तरीके के मेटल होती है उसके लिए। लेकिन यहाँ आपको कोई चिंता नहीं है, आप इसके साथ बेफिक्र भी हैं। और जैसे आपने बताया कि अगर आप डिजिटली पेमेंट करेंगे तो 50 रुपए का आपको पर ग्राम एक एडवांटेज भी इसमें मिलेगा। और जी, श्रोताओं को अपने हम बताना चाहेंगे कि ये जो भी गोल्ड बॉन्ड अगर आप परचेज करते हैं, जैसे आप इसे डीमेट जो आपका अकाउंट उसमें भी आप ले जा सकते हैं, जिसमें आपको इसे खरीदना और बेचना किसी भी समय आपके लिए और भी आसान हो जाता है। And now let's have a look at how the rupee behaved today from Nikhil. जी हाँ, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 10 पैसे कमजोर होकर 79.87 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.18% की बढ़त से 108.36 पर था। और इस बीच फरीदाबाद से हमारे साथ में मनोज वर्मा जुड़े हुए फोन लाइन पर। हेलो जी मनोज जी, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। हरवी जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। एक्चुअली 4 साल पहले मैंने अपनी वाइफ के नाम से कुछ इन्वेस्ट किया था किसी ब्रोकर के थ्रू, और बेसिकली मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था सब ब्रोकर ने, और 8 लाख रुपए मैंने लगाए। और अभी 2 साल पहले उन्होंने अपना सारा जो भी एजेंसी थी उसने अपना सारा काम बंद कर दिया। और जब मैंने उनसे अपनी डिटेल मांगी तो पता चला कि जो मैंने पैसा लगाया था उसमें सारे शेयर सेल और जो उन्होंने खरीदा और बेचा, उस खरीदने बेचने में वो सारे शेयर्स में सब तरह का लॉस हो गया मेरे को जी। तो अभी इसमें 2 चीजें हैं। एक पॉइंट तो ये है कि रिकवरी का तो मैंने केस डाला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो ग्रेवियंस सेल है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था, बट आपने क्योंकि ट्रेड खुद किया है, ऑनलाइन ट्रेड भी थे कुछ उसमें, डायरेक्ट ट्रेड भी थे, 2 तरह के जो ट्रेड रहते हैं, बट अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने सिंपली कह दिया कि प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड कराया था, बट आप जो है अपना मनी जो है वो लूज कर चुके हैं। सेकंड जो पॉइंट है मेरा कि जो सब ब्रोकर था वो उन्हीं का ब्रोकर था, और सब ब्रोकर ने अपना नंबर दिया हुआ था केवाईसी में, और उस केवाईसी में जो भी ट्रेड मैंने मेरे नाम से हुए हैं, मेरी वाइफ के नाम से, वो सारे ट्रेड कंफर्मेशन वगैरह जो है वो जो उनका सब ब्रोकर था उसने किए हैं। तो अभी मुझे केवल एक एडवाइस दी है कि मुझे इसमें जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे बताया भी गया है लोगों ने, कि इसमें आपको जो केस आप कर सकते हैं वो एक तो रिकवरी का केस कर सकते हैं, और एक दूसरा जो है वो आप फ्रॉड का केस कर सकते हैं उस सब ब्रोकर के अगेंस्ट में। तो क्या ये सही है? देखिए मनोज जी, एक तो आपको ये देखना होगा जब आपने अकाउंट खुलवाया क्या आपने उनको पावर ऑफ अटर्नी दी थी कि वो आपके बिहाफ पर सेल परचेज कर सकें, और जो वैल्यू का आपने इन्वेस्टेबल अमाउंट उनको दिया था उसके लिए। यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम साइन करते हैं जब इस तरीके का अकाउंट्स खोलते हैं, तो उस वक्त नहीं देखते कि डू एंड डू नोट्स क्या है, क्या प्रिकॉशन बरतनी है। खास तौर से जब आप दूसरे को अपना अधिकार सौंप देते हैं कि वो आपका इन्वेस्टमेंट का कैसे भी इस्तेमाल करे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और इसमें आप सेबी में तो जा सकते हैं, अगर वो सब ब्रोकर के और उनके बीच का जो ये है कामकाज वो अगर कानूनी दायरे में नहीं आता, तो ये उसके लिए आप बात कर सकते हैं, और आपको सेबी में जाना चाहिए, बिकॉज बीएससी का अपना काम है, बट अभी जो रेगुलेटर है मार्केट का वो सेबी है, और वही आपके ज्यादातर इन्वेस्टर का ग्रीवांस का काम वहां पर है। तो एक तो वहां आपको जाना चाहिए, और साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए कि उसका लीगल एडवाइस लेना चाहिए कि आपने किस तरीके की अनुमति उनको दी थी। और ये जैसे आपने कहा केवाईसी में आपने उनको अपना नंबर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपके पॉइंट पे ये फॉल्ट है, क्योंकि जो भी मैसेज आना था, जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होना था इन्वेस्टमेंट के वक्त, वो अगर आपका नंबर होता तो आपको पता लगता, और उस जानकारी के आधार पर आप अपना फैसला ले पाते। तो ये आपने दूसरे व्यक्ति को फ्री हैंड दिया अपना पैसा दे करके, तो इसमें ये एक बहुत बड़ी आपकी खामी है। और इसमें अब यही बनता है कि जाहिर सी बात है बीएससी तो उसमें यही होगा, बिकॉज बीएससी और एनएससी और प्लेटफॉर्म रेगुलेटर इज सेबी। आई थिंक आपको सेबी में इसके लिए जाना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए कि आपने क्या उनको अधिकार दिए थे आपका अकाउंट चलाने के। ये फ्रॉड का केस करने के लिए भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं एडवोकेट्स वगैरह से।
And the next caller is Mr. Harish from Mumbai. Mr. Harish, welcome to the program. Please ask your question. हरीश जी अपना सवाल पूछिए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगता है हरीश जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। शेयर बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। तो आज शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.5% की तेजी रही। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.2% की नरमी रही। हांगकांग के हिंग सेंग में 0.6% की गिरावट रही और जापान का निक्केई 225 0.5% लुढ़क गया। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान गिरावट का रुख रहा। लंदन का FTSE 100 0.3% नुकसान में रहा। फ्रांस का कैक 1.4% और जर्मनी का डेक्स 2% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। मुंबई से गोपाल जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो गोपाल जी। हेलो। हाँ, मार्केट मंत्री को नमस्कार जी। नमस्कार। आपका प्रश्न क्या है? सर मैं मुंबई से गोपाल बोल रहा हूँ। सर मेरा एक्चुअली अभी आपने बोला ना पावर ऑफ अटॉर्नी, सर पावर ऑफ अटॉर्नी कंपलसरी रहता है। इससे बेटर है कि अगर गवर्नमेंट बैंकों में अगर डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो वहां इस तरह का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कभी भी। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो जिसने हमें पहले फोन किया था। ठीक है, मेरा सवाल ये है जी, आरबीआई ने सर्वे किया कि इसमें 4-5 देश अपने कंट्री, इंडिया के 5-6 ये कंट्रीज है जिसकी हालत खस्ता है, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, जैसे कि पंजाब और अपना राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरला। कुछ ऐसे 5-6 कंट्री नाम बताए स्टेट के। इसका रीजन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग जो ऐसे तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फ्री पावर, उसकी वजह से तो इनकी हालत खस्ता नहीं है? मेरे को समझ में नहीं। आरबीआई ने सर्वे में बताया कि इन कंट्रीज की हालत खराब है। थोड़ा मेरे को बताएंगे इस बारे में क्या? और दूसरा जो ये जो मार्केट है, आप देखेंगे 1.5 महीने में 52,000 से 60,000 चले गया, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इसमें सिर्फ निफ्टी 50 और इसका ज्यादा वैल्यू रहता है। बाकी स्टॉक आप देखेंगे तो कुछ वर्थ इतनी खराब है, मिड कैप और स्मॉल के भी कई स्टॉक तो अभी भी 4 साल पहले के रेट पे पड़े हुए हैं, हिलते ही नहीं है। तो उसमें इसका क्या रीजन है? उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी अरविंद जी, देखिए इनका जो सवाल था कि फिस्कल हेल्थ राज्यों की कैसी है, जो राजकोषीय हालत हम बोलते हैं उसमें कोई भी जैसे नेशनल बजट हो या स्टेट के फाइनेंसेज हो या नेशनल हो, वो तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से कैसे आप चलते हैं। फिर आपकी बोरोइंग लिमिट्स होती हैं, आप बोरो करते हैं अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए। ज्यादातर आप देखिए ज्यादातर बजट जो वो डेफिसिट बजट ही होते हैं, तो उसके लिए आप मार्केट से बोरो करते हैं। अब आपकी उधारी लगातार इतनी बढ़ती जाए क्योंकि आपके खर्चे आपने उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया और वो आपका जो स्टेट जीडीपी है उसका 50%, 60%, 70% हो जाए, तो वो एक तरीके से अनहेल्दी माना जाता है क्योंकि आपकी जो डेट सर्विसिंग है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको जो खर्चे करने हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपको वेलफेयर स्कीम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना हो, हेल्थ पे करना है, एजुकेशन में करना है, या इवन कोई आपको कैपेसिटी क्रिएट करना है इरिगेशन में, पावर में, तो आपके पास अगर रिसोर्सेज होंगे तो आप करेंगे। लेकिन अगर आपका जो रेवेन्यू है उसका एक बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में चला जाएगा तो आप उस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे जो कि आपकी तरक्की के लिए बिल्कुल और आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर करने के लिए जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम काफी कई सारे राज्य जो उन्होंने बताया उनके साथ और भी कई राज्य हैं वहां पर भी ये है। और देखिए एक तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है कि आपको उसके तहत फिस्कल डेफिसिट आप कहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार जब असामान्य स्थिति हुई तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के उसमें ढील दी गई। तो अब ये देखना पड़ता है कोई भी सरकार हो, राज्य की हो या केंद्र की हो, अगर आपका राजकोषीय प्रबंधन अच्छा है तो आपके राज्य की सेहत के लिए भी अच्छा है, वहां के लोगों के लिए भी अच्छा है। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि एक सीमा से आगे आप ब्याज भी नहीं मतलब कर्ज भी नहीं ले सकते। And the other part of his question was about the mid-cap and small-cap index, stocks in that range. And he said that, some of the stocks have been the same. No, actually, it is a problem. Some stock doesn't move. और ये mid-cap ही क्यों, large-cap में भी होते हैं। और क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है, मार्केट तो एक गेम की तरह से है जहां लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज जो इन्वेस्टर है वो देख रहा है, इट इज नॉट ए फ्लो के यूनिफॉर्म फ्लो हर चीज में होगा।
तो इसीलिए इंडेक्स में वो स्टॉक्स रखे जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करें सेक्टर को एक उस तरीके से, और लोगों को आइडिया रहे कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, तो वो अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो इतना सारा लिस्टेड स्टॉक्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो सभी स्टॉक्स तो उस तरह मूव नहीं करते और ना ही अप्रिशिएट होते। And the next caller is from Bhilai, Mr. Ravi Narayan. Mr. Narayan, welcome to the program. Please ask your question. हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा एंड हरवीर जी को भी नमस्कार जी। सवाल मेरा सवाल है कि ये जो गोल्ड बॉन्ड है, ये जो बैंक्स भी बीच बीच में जो प्लेस करती हैं, तो गोल्ड बॉन्ड बोलने से ऑलवेज ये गवर्नमेंट के तरफ से ऑफर किया हुआ होता है कि बैंक्स भी अपना बॉन्ड्स निकालते रहती हैं? ये मेरा सवाल है। थैंक यू। नहीं, गोल्ड बॉन्ड्स जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये तो गवर्नमेंट का है, भारत सरकार के भी आपके ये इशू किया है और बिक्री इसकी सब जगह से है, बैंकों से भी है, पोस्ट ऑफिस से भी है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, तो ये उस तरह से है। अदरवाइज गोल्ड ETF होता है तो वो थोड़ा अलग होता है जी। और रुपए पे नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 87 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.18% की बढ़त से 108.36 पर था। Moving on to commodities, global crude oil prices today declined 0.5%, ending 3 days of gains. Crude prices fell as investors were concerned aggressive U.S. interest rate hikes will weaken the global economy and dent fuel demand, while a strengthening dollar also added to pressure. Brent crude was trading at $96.20 per barrel, while WTI crude prices were at $90.35 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 465 रुपए सस्ता होकर 51,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 820 रुपए टूटकर 54,675 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,742.80 प्रति ऑन्स पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $18.85 प्रति ऑन्स पर थी। Harveer ji, a last question, since you are editor of Rural Voice, so I have to ask this question from you. Paddy sowing continues to lag, and the August estimates that have come out from the government, it's down by 8.25% compared to the same period last year. Is it a cause for concern, given that we are also one of the biggest exporters and for domestic consumption as well? Yes, it is a cause of concern. Basically, in the states like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, and some southern states, Telangana and Andhra, and even Madhya Pradesh, acreage is down. Reason is that because we have a normal monsoon overall in totality, but when we see the spread of the monsoon and reason why, there is a deficiency of rainfall in these states. And Kharif crop is very important for these states because there are many large tracts which are single crop dependent on rain. So, and rice is a very important crop in terms of food grain production in the country. The largest food grain production comes from the rice. At the same time, because we are one of the biggest exporter of rice, and we achieved almost 40% of the world trade in rice export from India overall. So that's why we have to see whether there is any improvement, because still 3 million hectare acreage is down compared to last year. So, but maybe some other area states where productivity is better, so we can have. But one point I want to say that in Central Pool we have sufficient stocks of the rice. Thank you. And on that note, thank you so much for coming to the studio and answering the queries of our listeners. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks fall around 1.5% amid negative global cues. Sensex closes below 58,800 points. Nifty settles below the 17,500 mark. Sovereign gold bonds open for subscription from today. And Brent crude prices decline to hover around $96 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar, and we'll be back again at 6:30 with Market Mantra. So this is the whole team of Market Mantra saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.